Thank you for joining. We were discussing about mesh current method for circuit analysis, और हमने difference देखा between mesh current method and branch current method. So basically, we are interested in calculation of voltages and currents, and this difference can be seen in terms of the way the calculations are done. So we discussed about the branch current method, basically, which is an application of both KCL and KVL. और इसमें हम जो एलिमेंट्स में जो करंट्स शो करते हैं, दे आर एक्चुअल करंट्स विच आर द ब्रांच करंट्स, whereas mesh current method is based on application of KVL and Ohm's law. Right. So here, when you see a circuit which is being analyzed with the help of mesh current method, you won't see the branch currents. You will only see the meshes and the currents which are designated to those meshes. So in our last class, we also discussed what is a mesh. A mesh is a simplest loop which does not have any other loop inside it. So we saw the examples here. A, B, F, A is a mesh, whereas this A, B, C, E, F, A is a loop because it carries two other loops inside it. So we said that all meshes are loops, but all loops are not meshes. Mesh current को हमने define किया था as an imaginary current, a fictitious current, which is assumed to flow in the periphery of a mesh. So the branch which is common to two meshes has a net current which can be found with the help of the two mesh currents, right? So we saw that if these two currents are shown as I1 and I2, and if I am assuming that the branch current is from A to B, then I will write that current as I1 minus I2. Whereas if I assume this current to be from B to A, then I will write it as I2 minus I1. So this is essentially the same thing. We can write it either of the ways. So we solved some numericals that day, and today I shall take up some more examples so that we can have practice on that. But before that, if you have any specific doubts, you can ask. I was also seeing the chat box of our previous class, and some student was asking why we used a diamond shaped source for one of the sources of power, and one student replied that महंगा है, इसलिए हम diamond shape से show कर रहे हैं. वो महंगा नहीं है, वो इसलिए हम show कर रहे हैं because this is a dependent source. और ये जो dependency है, that is not in terms of time, but it is in terms of some other voltage or current, right? कोई भी source जिसकी value किसी दूसरे voltage या किसी दूसरे current पर dependent हो, ऐसे source को हम dependent source कहते हैं, and it is shown with this rhombus. जबकि अगर source की value independent है, independent का मतलब नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा constant हो. It may depend on time, right? तो अगर वो independent है, तो उसका जो symbol होगा that will be a circle. So this is a circle, so this shows it is an independent source. और ये plus और minus sign है, इससे हमें पता चल रहा है कि एक voltage source है, and the value of that voltage is 24 volts. यहाँ पर ये circle है, इसीलिए एक independent source है. Arrow बना हुआ है, इसका मतलब ये current source है, and value of that current is 5 amperes. So this discrimination is important to solve the circuits. तो dependent source भी जो मेन उनका क्लासिफिकेशन है वो भी दो तरह का होगा. इट कैन आइदर बी अ वोल्टेज सोर्स, हमें कैसे मालूम चलेगा, प्लस और माइनस साइन लगा होगा. इट कैन ऑल्सो बी अ करंट सोर्स, जो हमें कैसे मालूम चलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस एरो. और क्योंकि हमने उसको एक डिपेंडेंट सोर्स कहा है, सो द वैल्यू ऑफ दिस सोर्स विल डिपेंड ऑन आइदर सम करंट, यानी ये हो सकता है अल्फा टाइम्स आई एक्स हो, तो अल्फा का जो यूनिट होगा दैट विल बी वोल्ट per ampere, right? If this has to be a voltage source. So इस तरह के सोर्स को हम कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ये सोर्स ऐसा भी हो सकता था कि ये बीटा टाइम्स वी वाई होता,
राइट. सो किसी सर्किट के किसी एक पार्ट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी वाई, और ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका बीटा टाइम्स वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर जो बीटा का यूनिट होगा इट विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इसी तरह से करंट सोर्स कैन Sir, डिपेंड. हाँ जी. what is the unit of alpha? अल्फा इज इन वोल्ट पर एम्पियर्स. ओम्स का यूनिट होगा बेसिकली, क्योंकि करंट का यूनिट है आई एक्स इज अ करंट. वी आर सेइंग दैट दिस आई एक्स इज अ करंट इन सम अदर पार्ट ऑफ द सर्किट. So this is in amperes. So ampere that gets cancelled. Or because this is a voltage source, so this overall uh, quantity has to be in volts. That is why it is in volts per amperes, right? Here the beta, this quantity beta will be dimensionless क्योंकि एक voltage source है and it is dependent on some voltage. इसी तरह से current source जो होगा it can depend on some current, right? So I can write it gamma times IY. So this gamma times IY is a current. IY is also a current. So this gamma will here be a dimensionless quantity. ये इस तरह का सोर्स जो होगा हम उसको कहेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स. इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा हो सकता है कि ईटा टाइम्स वी नॉट. सो द करंट जनरेटेड बाय दिस सोर्स इज ईटा टाइम्स a voltage which is V naught in the circuit. So here this unit of this eta will be in amperes per volts, right? So Sir, can you again explain the mesh current method? yeah, that I'll do. That I'll do. ठीक है. So this was one of the doubts that was asked that day. So now let us move on to practicing this mesh current method. So here we are required to calculate I1 and I2. I am taking those examples first which do not have any current sources, right? So my first step will be here. I am required to calculate, let us say we are required to calculate the current through this resistance of 12 ohms. So my first step will be to identify the meshes. जो students नए हैं class में, अगर इस circuit को हम without its elements देखें, तो ये circuit हमें इस तरह का दिखाई देगा. Topography of this circuit will look like this. So this circuit here has got two meshes. हमने mesh को define किया एक ऐसा loop which does not have any other loop inside it, और loop को हमने define किया एक closed path जिसमें we are not encountering any component more than once. So इसमें जब हम देखेंगे तो हमें ये दो meshes दिख रही हैं. हर बार हम mesh current की direction और जिस direction में हम travel करेंगे to apply KVL, उनको हम clockwise direction में ले रहे हैं. This is purely a convention. इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं. So ये जो पहला mesh था, mesh 1, वो it comprises 12 volt source, 2 ohms, this 12 ohms and 4 ohms, right? और इसका मैंने करंट एज्यूम किया स्मॉल i1. ये एक मैश करंट है. इसी तरह से जो दूसरी मैश है, दिस इज द मैश 2, इसका हमने करंट एज्यूम किया i2. तो अब जब हम केवीएल लिखेंगे तो हमें हमेशा ये मान के चलना है कि जो नेट करंट है वो हमेशा हमारी डायरेक्शन में ही है, राइट? तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि हम यहाँ पर कैसे अप्लाई कर रहे हैं. सो आई एम राइटिंग केवीएल for mesh 1. I am starting from this point. हमारा कन्वेंशन ये है कि हम राइज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं, फॉल इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेते हैं. तो रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, अगर आई हैव दिस रेसिस्टेंस, करंट लेफ्ट से राइट है और हमारी मूवमेंट भी अगर लेफ्ट से राइट है, तो दैट इज अ बेसिकली फॉल इन पोटेंशियल. वी विल राइट इट एज प्लस आई आर. और अगर सेम केस में हमारी मूवमेंट अगर राइट से लेफ्ट की तरफ है, so there is a rise in potential as we move, so I will take this potential difference as minus IR, right? Or voltage source के केस में you already know the voltage directly as well as the polarity of the voltage. So I am writing KVL for mesh 1 starting from this point. So on my way I encounter 2 ohm resistance, the current there is I1. So I was moving from left to right, current भी यहाँ पर left to right है, so there is a fall in potential. I will take it as plus 2i1. ठीक है. Then I come to this point. Let us name these
nodes. So from B to C, I have one resistance 12 ohm, which is common to two meshes. तो इस 12 ओम रेसिस्टेंस में दो मेश करंट्स फ्लो हो रहे हैं, एक I1 है जो B to C दिख रहा है हमें, और एक I2 है जो C to B दिख रहा है हमें. तो जो एक्चुअल करंट होगा इसमें, जो ब्रांच करंट होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू करंट्स. और मैंने क्या बताया, क्योंकि अभी हम मैश 1 में हैं, अभी हम, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जब हम इस 12 ओम को हम जब क्रॉस करेंगे, ये मैं मैश अब हमारे ट्रेवल की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, हम ये एज्यूम करेंगे कि जब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो नेट करंट भी हमारी डायरेक्शन में है. हमारी डायरेक्शन क्या है, बी टू सी है, राइट. तो नेट करंट को अगर बी टू सी हम लिखना चाहते हैं तो हम उसको लिखेंगे I1 माइनस I2. ऐसा क्यों? क्योंकि I1 की डायरेक्शन बी टू सी है, I2 की डायरेक्शन सी टू बी है. तो अगर हम चाहते हैं कि जो नेट डायरेक्शन है वो बी टू सी हो, तो इट विल मीन दैट the difference has to be taken between I1 and I2. So this current is I1 minus I2. The value of resistance is 12 ohms. So the potential difference will be 12 into I1 minus I2. Current हमारे साथ साथ चल रहा है, यानी there is a fall in potential which has to be taken with a positive sign. So this is plus 2I1 minus I2. हम C पर आ गए, C से D पर जाएंगे. 4 ओम में जो करंट दिखाई देगा that is I1, हमारे साथ साथ चल रहा है इसलिए प्लस साइन 4 टाइम्स I1. फिर हम D पर आ गए, D से A पर जाएंगे. There is a rise in potential क्योंकि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा रहे हैं. The value of potential difference is 12 volts. So this is 12, and there is a rise in potential which has to be taken with a minus sign. And now we are back to A. So this algebraic sum should be equal to 0. So this will be the equation for mesh 1. इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. Okay, now I am writing KVL for mesh 2. So let us write this equation. I will ask someone of you to tell the equation. Kanisha Kaur, are you there? Kanisha Kaur, please unmute yourself and tell me the equation for mesh 2. Sir, हाँ जी. sir, 24 I2 minus 12 I1 is equals to. You're starting from which point? B. Start from B, move Yes, sir. clockwise. Yeah. So starting from B, sir, I have solved the equation and simplified it. No, in the exam you have to write the full equation so that the examiner can see whether you have written it correctly or not, right? So this is plus 9 9I2 9I2 minus 8 plus 8 plus 8 plus minus 3I2 आप लोग plus 12I2 minus I1 equal to 0. okay, this is 3I2. फिर जब हमारे पास 12 आएगा तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नेट करंट है वो हमारी डायरेक्शन में है. हमारी डायरेक्शन C to B है, तो अगर नेट करंट को C to B होना होगा तो उसको हम लिखेंगे I2 minus I1, right? And since it is in our direction of travel, so I will again take the sign as positive. And सर ये कंपलसरी है क्या? ये कन्वेंशन ही है. ये कन्वेंशन है, बट अगर आप I1 माइनस I2 लेंगे अगर इसको, तो देन यू हैव टू टेक अ माइनस साइन हियर. हाँ वो तो लिया है ना. कन्वेंशन से फायदा ये होगा कि मतलब इफ यू स्टिक टू वन कन्वेंशन, फायदा ये होगा कि योर सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी राइट, इक्वेशंस विल ऑलवेज बी राइट, बिकॉज यू विल गेट यूज्ड टू द फॉर्मेट जो हर बार एक ही फॉर्मेट में आएगी इक्वेशन. ठीक है. सो दीज आर द टू इक्वेशंस. इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और इस बार मैंने आंसर्स भी यहीं पर मेंशन कर दिए so that you can check your calculation, right? Let us come to this question. आपको प्लीज कहीं भी डाउट हो तो ask, you can interrupt me always. यहाँ पर you are required to calculate I0.
using mesh analysis. करना लाके बेटा आवाज़ां मार देन मम्मी पता नहीं मैंने तो मैं क्लास ही देख रहा हूँ पापा की So here, क्लास हम देखते नहीं, क्लास सुनते हैं, राइट? देख रहे हैं इसलिए हम जवाब नहीं दे रहे। Sir, Yes, yes, please. sir, in the previous sum, if we take minus 12 I1 minus I2, then that minus would be due to the rise in potential जब resistance के through जा रहे होंगे. Exactly. इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 9I2 plus 8 plus 3I2. अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं करंट को I1 minus I2 ले रहा हूँ, right? The student is now in mesh 2. तो ये I1 था और ये I2 था. Now the student is traveling from B to C, right? But she wants to take the current as I1 minus I2. So once you assume the current to be I1 minus I2, then it intrinsically it means that the flow is from B to C. I1 minus I2 हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम assume कर रहे हैं कि I1 बड़ा है I2 से. I1 अगर I2 से बड़ा है, इसका मतलब जो फ्लो है वो B to C है और हम जा रहे हैं C से B की तरफ. तो यहाँ पर जो आप साइन लेंगे, that will be a minus sign. So essentially, both the things are same. Okay? Yes, sir. सर हाँ जी. सारी साइन कन्वेंशन ऑपोजिट ले सकते हैं? हाँ हाँ, आप ले सकते हो. साइन कन्वेंशन आप exactly opposite ले सकते हो. It is perfectly all right. सर मैश करंट में जब साइन जब करंट की जो डायरेक्शन आती है लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका भी चक्कर पड़ेगा? हाँ, उसका भी चक्कर पड़ेगा. वो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, हमें मिलेगा ऐसे एक चक्कर. सर एक डाउट है. हाँ जी. सर जैसे इस वाले क्वेश्चन में आई नॉट गिवन है और दूसरे क्वेश्चंस में भी जैसे ट्यूटोरियल शीट में अलग अलग ब्रांचेस में I1 I2 I3 गिवन होता है, तो उन क्वेश्चंस में हम उनको इग्नोर करके पहले मैश करंट से जो मैश कंसीडर करके उसमें करंट निकाल लें और फिर जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन से गिवन है उसको फिर इक्वेट करके आंसर देंगे. तो हाँ, ऐसे कर सकते, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं. लेकिन ये वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन में आई नॉट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इवन इन द फर्स्ट. वो तो डिपेंडेंट सोर्स है. Exactly, right? So it has to be given here. So in this question, like we have one source here, and this is a dependent source. ये हमें कैसे मालूम चल रहा है? इस rhombus से पता चल रहा है. And this is a voltage source because the sign inside it, that is a plus sign and a minus sign. So this is a potential difference which is such that ये जो ऊपर वाला पॉइंट है हायर पोटेंशियल है, नीचे वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल है, एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 times I नॉट. तो जब हमें ऐसा कोई डिपेंडेंट सोर्स अपने सर्किट में दिखेगा तो हमें इमीडिएटली ये चीज ढूंढनी है कि आई नॉट कहां पर है. ये क्वेश्चन में ही दिया जाना चाहिए. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन अज्यूम. दिस हैज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट? तो आई नॉट जब हम ढूंढेंगे तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा. आई नॉट इज अ ब्रांच करंट एक्चुअली, है ना. ये एक ब्रांच करंट है और ये किससे फ्लो हो रहा है? 10 ओम रेसिस्टेंस से फ्लो हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट में 10 ओम रेसिस्टेंस से जो भी करंट फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज सोर्स उसका 4 times ज्यादा वोल्टेज सिंथेसाइज कर रहा है, राइट? तो फिर से हम इस सर्किट को देखें अगर. सर या जो मैश वाले में हम इक्वेशंस लिखेंगे उसमें तो नहीं ना कंसीडर करना आई नॉट ना, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. लेट अस राइट. उसमें तो I1 minus I2 लिख सकते हैं ना सीधा. उसमें हम I1 minus I2 लिख. ओके सर. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें इसके, तो हमें वो इस तरह का दिखाई देगा और हमें यहाँ पर 3 मैशेस दिखाई देंगी, 1, 2 and 3. तो सबको हम क्लॉकवाइज ले लें और इनको हम एज्यूम कर लें I1, I2 and I3. इंसिडेंटली इस क्वेश्चन में मैश करंट्स भी दिए गए हैं. सो नाउ वी कैन राइट KVL फॉर mesh 1. I am writing the equation. अगर आप में से किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क. ओके, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है. सो देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन टू बी 24 volts, so -24. फिर 10 ओम हमारे रास्ते में आएगा एंड इट इज कॉमन बिटवीन 2 meshes, राइट? सो अब मैं इसमें कैसे ट्रेवल कर रहा हूं? मैं टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा हूं इस 10 ohms के लिए. तो आई विल एज्यूम कि नेट करंट भी टॉप टू बॉटम है और वो नेट करंट कितना होगा? I1 minus I2 होगा. I cannot take it as I2 minus I1
मतलब ये भी एज्यूम कर लें कि टॉप टू बॉटम है, लेकिन वैल्यू लिख दें I2 minus I1 है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 10 times I1 minus I2, एंड बिकॉज करंट हमारे साथ साथ चल रहा है, नेट करंट, सो दिस विल बी विद अ प्लस साइन। ये 12 ओम अगेन इट इज कॉमन बिटवीन टू मैशेस 1 and 3, और फिर हम यहाँ पर नेट करंट को अब मानेंगे I1 minus I3, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 12 times दिस, और I1 minus I3 की डायरेक्शन हमारे साथ है, सो प्लस साइन, और फिर हम वापस आ गए उस क्रॉस तक जहां से हमने स्टार्ट किया था, सो दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट? सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर mesh 1. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। सर आई नॉट कहाँ गया? हाँ जी, आई नॉट क्या? आई नॉट नहीं आया इक्वेशन में। I0 हम ले सकते थे, बट I0 इज अ ब्रांच करंट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, I0 इज अ ब्रांच करंट, तो हम उसको भी ले नहीं रहे, उसको हम इंक्लूड करेंगे बाद में। ठीक है ना? मान लो I0 तुम्हें दिखता ही नहीं यहाँ पर, तो तुम ये इक्वेशन ऐसे ही लिखते, राइट? तो अब हम इसको देखेंगे कि I0 किस तरह से हमें इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, सो नाउ आई एम राइटिंग KVL फॉर mesh 2. इसमें किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछें, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन देखने में सिंपल है, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। ओके, सो आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट जहां पर क्रॉस है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं। सबसे पहले मेरे रास्ते में एक 24 ओम रेजिस्टेंस आएगा, उसका जो करंट है दैट इज I2, हमारे साथ चल रहा है, सो आई विल टेक इट विद प्लस साइन, 24 times I2। फिर मैं इस पॉइंट पर आ गया, और मैं कैसे जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं राइट से लेफ्ट की तरफ। 4 ओम जो रेजिस्टेंस है, ये ब्रांच जो है इट इज कॉमन बिटवीन mesh 2 and mesh 3। तो अब क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि नेट करंट भी लेफ्ट से राइट से लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट अगर उसको लेना है तो वो I2 minus I3 होगा। दिस विल बी I2 minus I3, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 4 times दिस, एंड क्योंकि वो हमारे साथ साथ चल रहा है, सो अ पॉजिटिव साइन। फिर से अब 10 ओम हमारे रास्ते में आएगा, और इस बार क्योंकि मैं mesh 2 में हूं, आई एम इन दिस mesh, तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि नेट करंट हमारे साथ चल रहा है। तो हम कैसे जा रहे हैं? बॉटम से टॉप, राइट? तो नेट करंट बॉटम से टॉप लेना है, तो यू हैव टू टेक इट एज I2 minus I1। तो मैं इसको लिखूंगा I2 minus I1, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 10 times I2 minus I1, और क्योंकि वो हमारे साथ चल रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन, एंड नाउ आई एम बैक टू दैट क्रॉस, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेम रेजिस्टेंस को जब हमने पिछले बार लिया था मैश में, तो हमने उसको I1 minus I2 लिखा था, और इस बार हमने नेट करंट को I2 minus I1 लिखा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इसका हमें ध्यान रखना है बस। So I am writing KVL for mesh 3. I am starting from this cross now. So मेरे रास्ते में 12 ओम रेजिस्टेंस है, मैं बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा हूँ। ये 12 ओम कॉमन है बिटवीन mesh 1 and mesh 3। बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, तो जो करंट की हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे I3 minus I1। हमारे साथ चल रहा है करंट, इसलिए पॉजिटिव साइन। फिर हम 4 ओम में आएंगे, और इस बार हम कैसे जा रहे हैं? हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो नेट करंट को हम लिखेंगे I3 minus I2, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 4 times दिस, प्लस साइन के साथ। और फिर हम यहाँ पर आ गए, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हमारे रास्ते में एक वोल्टेज सोर्स है, और वो इस तरह का है कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल। फॉल इन पोटेंशियल हैज टू बी टेकन विद अ पॉजिटिव साइन, और उस फॉल इन पोटेंशियल की वैल्यू जो है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है, वो है 4 times I0, so this is equal to 0. So now here I have 3 equations. इन 3 इक्वेशंस में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें। सर, जब थर्ड इक्वेशन में I0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर I2 minus I1 लिखेंगे कि I1 minus I2? Yeah, good question. So see, how many variables do we have in this circuit? We have 4 variables here. I1 is a variable, I2 is a variable, I3 is a variable, and I0 is also a variable here. So now we have to see whether we can have a relationship between
these 3 and I naught, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन जो है कि जब हम यहाँ पर I naught को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, तो उसको I1 माइनस I2 लिखेंगे या I2 माइनस I1 लिखेंगे। तो लेट अस फोकस ऑन दिस रेसिस्टेंस। सर वो तो डायरेक्शन से ही है ना, सो वो तो Fix भी डायरेक्शन तो I1 गिवन minus आई नॉट I2 किया हमें। या वो हम माइनस डायरेक्शन I2 होगा I1 की minus I2 डायरेक्शन हो को जाएगा। I1 minus I2 होना I चाहिए। नॉट और I1 की डायरेक्शन सेम होगी, यस यस। तो तो हम हम यहाँ पर माइनस I1 माइनस I2। या सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ब्रांच करंट कैसे फ्लो हो रहा है। वो देखो टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, I नॉट है। अच्छा मैश करंट्स को देखो, एक मैश करंट है जो टॉप टू बॉटम है और इस मैश करंट की वैल्यू क्या है, I1 है। दूसरा मैश करंट है वो ऐसा है, इसकी वैल्यू I2 है और वो कैसा फ्लो हो रहा है, जब हम 10 ओम पे फोकस करेंगे तो वो बॉटम टू टॉप दिखाई देगा। तो नेट करंट कैसा है, टॉप टू बॉटम है। अगर आप चाहते हो कि नेट करंट टॉप टू बॉटम रहे तो आपको डिफरेंस कैसे लेना पड़ेगा, I1 माइनस I2 लेना, ठीक है, क्योंकि I1 भी टॉप टू बॉटम है। सो जो फोर्थ इक्वेशन होगी वो होगी I नॉट इज इक्वल टू I1 माइनस I2। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि I नॉट इज इक्वल टू I2 माइनस I1, क्योंकि ये दो मैशेस के बीच में है जिनके करंट I1 I2 है, तो उनका डिफरेंस ही तो है, तो I1 हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि अलजेब्रिक साइन, वो जो साइन आएगा दैट इज गोइंग टू डिक्टेट, राइट। सो I नॉट हैज टू बी टेकन एज I1 माइनस I2, you cannot take it as I2 minus I1. Is it clear? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर, ये I नॉट वाला I1 minus I2 कैसे है? See, we had that resistance here. कितनी वैल्यू थी उसकी? 10 ohms. ठीक है, इन जंक्शंस के मैं नाम दे रहा हूं A और B, ठीक है। अब ये वाला जो रेसिस्टेंस था, इसमें ब्रांच करंट ऑलरेडी दिया गया था। कितना था वो? I नॉट था, राइट। फिर हमने ये देखा कि ये जो ब्रांच है AB, दैट इज कॉमन बिटवीन टू मैशेस। एक मैश यहां पर थी जिसका करंट क्लॉकवाइज हमने एज्यूम किया था I1, और एक मैश यहां पर थी, इसका भी करंट हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया था I2, ठीक है। अब देखो, जब हम मैश 1 के हिसाब से करंट को देखते हैं AB में, तो ये करंट ऐसा है। I1 कैसा है AB में? A to B है, राइट। I1 इज अ फिक्टिशियस करंट। I2 जो है, जब इसको हम देखते हैं सिर्फ 10 ओम रेसिस्टेंस में, जब हम फोकस करते हैं तो ये हमें कैसा दिख रहा है I2? ये हमें दिख रहा है B to A, राइट। ये कौन से करंट्स हैं? ये मैश करंट्स हैं। एक्चुअल जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है? ब्रांच करंट है। वो तो ब्रांच करंट जो है वो कितना है? I नॉट है। और वो कैसा फ्लो हो रहा है? वो हो रहा है A to B। तो अब देखो, अब जो ब्रांच करंट होगा I1 और I2 के टर्म्स में, वो उनका डिफरेंस होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। क्यों आ गया समझ में? क्योंकि I1 और I2 एक दूसरे से अपोजिट हैं जब हम इस ब्रांच पे फोकस करते हैं तब। तो अब क्वेश्चन है कि हम उसको I1 माइनस I2 लें या I2 माइनस I1 लें। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो डिपेंड करेगा कि I नॉट की डायरेक्शन क्या है। I नॉट की डायरेक्शन क्या है? A to B है। तो इनमें से A to B कौन है? I1 है। तो डोमिनेट किसको करना चाहिए? I1 को करना चाहिए। तो जब हम लिखेंगे I1 माइनस I2, इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि I1 इज ग्रेटर देन I2। तो जो नेट डायरेक्शन होगी वो A से B की तरफ आएगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I नॉट। अगर हम इसको I2 माइनस I1 लिखना चाहते तो हम लिखते I2 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस I नॉट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाती। I2 माइनस I1 की डायरेक्शन क्या होती? I2 माइनस I1 की डायरेक्शन हो जाती B to A, जबकि I नॉट कैसा फ्लो हो रहा है? A to B फ्लो हो रहा है। तो हम लिख देते कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस I नॉट। क्लियर है? सर अगर यहाँ पे गलती भी कर देते हैं तो एंड में नेगेटिव में आंसर आ जाएगा ना? अगर आप गलती कर देते हो तो आंसर फिर गलत एंड में नहीं सर, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर हम I2 माइनस I1 इक्वल टू I नॉट लिख देते तो एंड में हमारा नेगेटिव में आंसर आ जाता। हाँ, फिर तो हमें पता लग जाता भी I1 ग्रेटर है I2 से। हाँ एग्जैक्टली, पर वो हमें गलती ये करनी। प्रॉब्लम को साइन कन्वेंशन भी हैंडल कर सकता है।
हाँ जी, जो हम ये I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1 ले रहे हैं, हाँ ये वाला तो साइन कन्वेंशन भी हैंडल कर सकता है ना सर? नहीं कर सकता है ये अब ये साइन कन्वेंशन पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन पे डिपेंडेंस हमारी खत्म हो गई जब एक बार हमने मैश डिफाइन कर दिया और एक बार जब हमने केवीएल लिखना चालू कर दिया। मतलब उसमें आप ले लो कुछ भी, राइज इन पोटेंशियल को आप पॉजिटिव ले लो, फॉल इन पोटेंशियल को नेगेटिव ले लो, दैट इज ऑल राइट। मैश में भी करंट्स की डायरेक्शन कुछ भी ले लो, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। लेकिन वंस यू हैव डन इट, फिर जो है आई नॉट विल बी फिक्स्ड नाउ। I1 I2 और I नॉट का रिलेशनशिप फिक्स हो जाएगा, साइन कन्वेंशन विल नॉट हेल्प। मान लो किसी स्टूडेंट ने लूप्स को उल्टा लिया था, मान लो ये I नॉट था, उसने ये वाला मैश जो ले लिया क्लॉकवाइज ले लिया, राइट, और उसने ये वाला मैश जो था उसको उसने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। वो ऐसा क्यों करेगा, भगवान जाने क्यों करेगा, उसकी इच्छा है। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। एक कन्वेंशन फॉलो करने से यू गेट फैमिलियराइज्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द इक्वेशंस, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब देखो, अब जो ब्रांच करंट है वो है A to B, राइट। I1 जो है वो है A to B, राइट, ऐसा है I1। I2 में मैश 2 में देखोगे, सॉरी मैश 2 में देखोगे तो वो भी कैसा है, A to B है। दोनों करंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों साथ एक ही डायरेक्शन में है, मतलब नेट करंट कितना होगा, I1 प्लस I2, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी I1 प्लस I2 की, A to B। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I नॉट। क्लियर है। तो ये जो इंटरप्रेट हम कर रहे हैं कि ब्रांच करंट और मैश करंट का जो रिलेशनशिप हम दिखा रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि हमने पहले क्या कन्वेंशन ले लिया है। एक बार आपने कन्वेंशन ले लिया तो नाउ इट इज फिक्स्ड। अब इस केस में जब स्टूडेंट ने इस तरह से I1 I2 लिया था तो वो ये नहीं लिख सकता फिर, लेकिन इस केस में दिस इज करेक्ट। ठीक है, Excuse me, sir. वन बाय वन। हाँ जी बेटा बोलो। सर जैसे हमें I नॉट और A to B गिवन है, क्या आंसर ऐसा आ सकता है कि नेगेटिव आ जाए? हाँ बिल्कुल आ सकता है, सही भी हो? हाँ सही भी हो लेकिन नेगेटिव आ सकता है वो। तो सर फिर इसका आंसर क्या है? हाँ एक मिनट, फिर हम ये कहेंगे कि जैसे इसका आंसर नेगेटिव 1.5 आ रहा है सर। आप चेक पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आ रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है। Yeah, I got the point. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, I नॉट is coming out to be 1.5 एम्पियर with a प्लस साइन। इसका मतलब ये है कि I नॉट का मैग्नीट्यूड जो है 1.5 एम्पियर है, और जो डायरेक्शन यहाँ लिया था इन्होंने, यानी टॉप टू बॉटम, ये भी एक्चुअली वही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लो ये आंसर आपका नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये होता कि करंट का मैग्नीट्यूड 1.5 एम्पियर। सही आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो सही आंसर नेगेटिव आता तो हम ये कहते हैं कि एज्यूम्ड जो डायरेक्शन थी वो थी टॉप टू बॉटम, आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड तो वही है 1.5, बट डायरेक्शन इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। लेट अस मूव ऑन। इसके लिए मैं फटाफट इक्वेशन लिखता हूं। सो अगेन हियर वी हैव 3 मैशेस। देखो यहां पर I नॉट नेगेटिव आ रहा है, तो इन्होंने देखो करंट को एज्यूम कैसे किया था, ये मैं ब्रांच करंट शो कर रहा हूं। इन्होंने जो ओरिजिनल जो एजम्पशन था वो ये था कि I नॉट करंट जो है 6 ओम रेसिस्टेंस में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। फिर हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया यूजिंग मैश करंट मेथड, एंड I नॉट केम आउट टू बी नेगेटिव। सो इट मींस दैट कि ये 6 ओम रेसिस्टेंस में जो करंट है वो अपोजिट है, यानी राइट टू लेफ्ट है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 एम्पियर्स है। ये उसका इंटरप्रिटेशन है। तो वंस अगेन हियर वी हैव 3 meshes. I am writing the mesh current KVL for mesh 1. थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्रॉस, तो द इक्वेशन विल बी +6 I3 +8 I3 माइनस I2। देखो एक बार आप सबको एक जैसे डायरेक्शन में ले लोगे तो आपको याद हो गया कि रेसिस्टेंस के साथ हमेशा प्लस साइन ही आएगा, और आप जिस मैश में हो वो वाला करंट माइनस जिसके साथ कॉमन है वो वाला करंट, ये पैटर्न हमेशा फॉलो होता रहेगा। सो दिस विल बी +4 I3 minus I1 is equal to 0. I am writing all the equations. If you have any doubts, please ask. So I am writing for mesh 2. I'm sorry, this I wrote for mesh 3 actually.
जो I3 है वो correspond करता है mesh 3 के. So for mesh 2, I'm starting from this cross. So this is plus 8 I2 minus I3 minus 10 I0 plus 2 I2 minus I1 equals 0. KVL for mesh 1, I'm starting from this dot, minus 20 plus 4 I1 minus I3 plus 2 I1 minus I2 equals 0. So हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हो गई हैं 1, 2 and 3. But there are 4 variables I1, I2, I3 and I0. तो वो रिलेशनशिप हमें यहाँ से मिलेगा. देखो 6 ओम में एक्चुअल करंट I0 है और वो कैसा फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट, और मेश करंट वहां पर कितना है I3 है और वो भी कैसा फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट. तो ये वाली जो एक और इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी I3 is equal to I0, right? So if you solve these 4 equations, you will get I0 to be minus 5 amperes. Let us take some examples which have a current source in them. ये भी हमने सॉल्व किए थे इस तरह के क्वेश्चंस पिछली क्लास सर में. पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? I0 minus 5 amperes. ओके. ठीक है. I will share these slides with you. आप लोग सॉल्व करेगा. You can match your answers. Okay. So here I have two meshes here, mesh 1 and mesh 2. यहाँ पर देखो एक हम KVL उस लूप में अप्लाई नहीं कर सकते which carries a current source. तो यहाँ पर इस सर्किट has got 3 loops and 2 of the loops carry current source, है ना. ये बाहर वाला लूप लेंगे तो भी करंट सोर्स आएगा, ये एक और mesh लेंगे तो भी करंट सोर्स आएगा. तो you cannot apply KVL. So now वो वाला एक्सप्रेशन हमें कहां से मिलेगा? वो इस ब्रांच से मिलेगा. You have to focus on this branch. I2 is equal to 5 ampere. In this branch, yeah, minus 5 amperes. क्योंकि देखो AB ब्रांच में जब हम फोकस करेंगे तो मैश करंट कैसा दिख रहा है इसमें? I2 A to B. और एक्चुअल करंट जो है ब्रांच करंट वो कैसा फ्लो हो रहा है? B to A फ्लो हो रहा है. हमें कैसे मालूम? क्योंकि करंट सोर्स लगा है. ये तो पक्की बात है कि करंट 5 एम्पियर्स ही है और वो B to A है. तो हम क्या लिखेंगे? I2 is equal to minus 5 ampere. This will be the first equation. दूसरी इक्वेशन हमें mesh 1 से मिलेगी. So I am writing the equation. डाउट हो तो पूछना. minus 10 plus 4 I1 plus 6 I1 minus I2 equals 0. Right? एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे करंट सोर्स कहीं बीच में आया हुआ है ना. तो देखो यहाँ पर एक ये वाली ब्रांच है PQ ले लेते हैं इसको, और एक ये ब्रांच है QS. इन दोनों में करंट सोर्सेज है. तो एक रिलेशनशिप हमें यहां से मिलेगा. देखो 5 एम्पियर करंट कैसा फ्लो हो रहा है? P to Q. और P to Q जो करंट होगा मैश करंट के टर्म्स में वो क्या होगा? I2 minus I1. I2 minus I1. गुड. सो I2 minus I1 is equal to 5 amperes. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. वैसे यहां पर देखो ब्रांच करंट कितना है? Q2S है. कितना है वो? 3 I0 है. I2 minus I3. तो वो हाँ टॉप टू बॉटम जब हम लेंगे तो उसको हम लिखेंगे I2 minus I3. Good. Right? So now we already have two equations. Here we have 5 variables. I1, I2, I3, I4 and I0. तो I0 कौन सा करंट है? ये 2 ओम वाला करंट है. तो यहां से एक और रिलेशनशिप हमें मिलेगा. राइट? दिस करंट ब्रांच करंट इज I0 और हमारे हिसाब से ये करंट कितना है? I4 है, मैश करंट है. So what will be the relationship? I4 is equal to minus I0. Is equal to I0. Minus I0. Right? क्योंकि I4 हमारे हिसाब से कैसा है? देखो लेफ्ट टू राइट है, जबकि एक्चुअल करंट I0 कैसा है? राइट टू लेफ्ट है. Right to left है. This I4 will be equal to minus I. अब बची हुई दो इक्वेशंस के लिए हम दो लूप्स यूज कर लेंगे, दो मैशेस यूज कर लेंगे. एक यूज कर लेंगे मैश 4 और फिर हम मैश 1, मैश 2, मैश 3 यूज नहीं कर सकते. तो हम एक हाँ इस तरह का एक जो मैंने डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ ये हम यूज कर लेंगे. और इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम एक सुपर मैश कहते हैं. तो मैश 4 के लिए इक्वेशन आई एम राइटिंग क्विकली. इक्वेशन विल बी प्लस 2I4 प्लस 10 प्लस 8 I4 माइनस I3 इज इक्वल टू 0. और वो जो सुपर मैश था उसके लिए मैं लिख रहा हूं KVL. I am starting from this cross, so this will be plus
2i1 sorry plus 2i1 plus 4i3 plus 8i3 minus i4 plus 6i2 equals 0, right? So these will be the 5 equations. इनको हम सॉल्व करेंगे. I have shared the answer also here. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम सर्किट में क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि कोई सोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स. ठीक है, सो आई हैव सम क्वेश्चंस. हाँ जी सर पिछला क्वेश्चन लिखना है सर. इसके अंदर हम पूरा लूप ले सकते हैं, बाहर वाला? बिल्कुल ले सकते हैं, पूरा बाहर वाला लूप भी ले सकते हैं. ओके सर. सर हाँ जी सर, अगर 4 ओम की जगह कोई करंट सोर्स होता, हाँ, तो सुपर मैश कौन सी होती? अगर इस 4 ओम की जगह मान लो कोई करंट सोर्स होता 4 एम्पियर का, ठीक है, तो एक रिलेशनशिप हमें यहां से मिल जाता, I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स, राइट? और इसके बाद हमें शायद एक ही सुपर मैश से फिर हमारा काम, एक ही मैश से हमारा काम चल जाता, बाकी की 4 इक्वेशंस और होती. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, बाकी की 4 इक्वेशन और होती है. हाँ, एक इक्वेशन हमें ये वाली मिल जाती, I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स. एक इक्वेशन हमें मिली थी I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स. एक इक्वेशन हमें मिली थी I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 3 I0. एक इक्वेशन हमें मिली थी I4 इज इक्वल टू माइनस I0, और एक हमें इस मैश से मिल जाती, राइट? तो अब आप लोग, हाँ जी, ये सर आप कंप्लीट कर लीजिए. No, but it is over from my side. I have shared I wanted to solve these 2 questions also. I will share these slides with you. आप लोग इनको solve करिएगा, answers को match करिएगा, and if you have any doubts, you can always ask me. सर एक डाउट है. हाँ जी. सर अगर कोई 2 लूप्स है और उन दोनों लूप से इक्वेशन बना रहे हैं, और अगर हम उन दोनों के सुपर लूप से जो हम इक्वेशन बनाएंगे, तो मतलब वो दोनों को मिला के जो बनेगी वही है ना, मतलब उसे बनाने की जरूरत नहीं है. इसीलिए you will always need to use these equations. जहां पर करंट सोर्स है वो वाली आप इक्वेशंस आपको यूज करनी ही पड़ेगी. आप लोग स्टेप्स पढ़िएगा जो मैंने लिखवाए थे. पहला स्टेप उसमें था ही कि आइडेंटिफाई द करंट सोर्स, और जो मैश करंट्स है कॉरेस्पॉन्डिंग उनका रिलेशनशिप उस करंट सोर्स के करंट से निकालने हैं. अगर वो हम नहीं निकालेंगे तो फिर रिडंडेंट इक्वेशंस बनेगी, यू विल नॉट गेट द आंसर. ओके सर. मैंने जो स्टेप्स शेयर करें, यू मस्ट